Hello everyone, my name is Kanav and I had secured an All India rank of 2 in ALA 2024 examination. And in this video, I'll be addressing one doubt जो आप majority लोगों को है. That is about what to exactly do in these last 40 days before finally ALAT is there. So this is definitely a very important thing क्योंकि these 40 days can either make or break your preparation. But before beginning, would just like to mention कि the study anchor has made the sample paper of ALET. So as you know ALET का जो pattern है बहुत vary करते रहता है. मतलब मेरे साल में they had given a pattern which they had not given the last year, and this year as well they had a relatively new pattern. So with these varying patterns, it's very important that you have practice over each and every kind of pattern, right? So in that light, the study anchor has made this this sample paper in such a manner that this incorporates certain unique features of all the major types or patterns of ALET question papers which have been observed in the past few years. So do check out this paper. The link is in the description. Now, finally coming on to the video. I understand 40 days would feel very overwhelming. मतलब especially if I tell you about my story, मेरे को तो बहुत ज़्यादा overwhelming लग रहा था कि I prepared for 4 years. अब मुझे लग रहा था finally 4 साल की मेहनत का जो रिजल्ट है वो अब 40 दिन में के बाद हमारे पास होगा. 40 दिन के बाद I'll have the ALET paper. And कैसा रहेगा, क्या रहेगा, will I be able to perform or not, ये सारी चीज़ें. So there were n number of questions that I had. But I kept myself cool and I just followed certain tips and tricks which my mentor told me, Mudit Bhaiya. And I believe कि those things are something that I'll reiterate today. And those are exactly the things which should be followed in the last 40 days. So here are 3 major tips. First is doing current affairs, especially one liners. क्योंकि इस हम मेजरली क्लैट स्पेसिफिक जीके ही आती है हर जगह. जो मंथली कंपेंडियम्स देर आल्सो मेड इन अ वेरी क्लैट स्पेसिफिक मैनर. बट एज यू नो एलेट एंड क्लैट के जीके में देयर इज अ मार्क डिफरेंस. क्लैट में दे लास्ट यू थोड़े थीमेटिक क्वेश्चन फ्रॉम अ थीम विच विल बी मेंशन्ड इन द पैसेज, while in ALET they'll give you one liners जो कुछ भी हो सकता है, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दोज वन लाइनर्स जो आपने पूरे साल नहीं करे, राइट. तो इसलिए जीके में अभी वन लाइनर्स को करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि कहाँ से करा जा सकता है. सो आई सजेस्ट कि जीके टुडे की जो मंथली कंपेंडियम्स टाइप होती है उससे कर सकते हो. एंड दे स्पेसिफिकली मेक अ एमसीक्यू फॉर्मेट वाला questions, and those are like one liners only. So if you do that, that should be more than sufficient for one liners. Also it does not mean कि A-लेट है तो क्लैट का जीके करना ही नहीं. क्लैट का जीके भी इंपॉर्टेंट है और क्लैट के जीके से भी वन लाइनर्स बन सकते हैं. तो इसलिए क्लैट के जीके को भी अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दो. सो अभी तक आपने बहुत नोट्स बना, आई विल होप दैट यू हैव मेड द नोट्स. नहीं भी बनाए तो मतलब अब मंथली कंपेंडियम्स को फिर रिवाइज करो. पर अब इज द टाइम कि जब आपको चीज़ें याद होंगी, अब आपको याद करना है. अब देखो किसी को फेब्रवरी में क्या हुआ था अब याद शायद ना हो, राइट, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट. तो इसलिए आप अब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन रिविजन. तो नाउ हैव योर नोट्स, हैव योर मंथली कंपेंडियम, स्टार्ट डूइंग देम अच्छे से. So that is very important. Now moving on to the second tip, that is doing a lot of previous year papers. Now this is something which I believe I have said a lot of times, but previous year papers were the thing which made my preparation. Like I'm pretty sure I would not have gotten the rank that I got if it were not for previous year paper. I'll tell you a story here. So जब मतलब मेरा क्लैट, I had messed up my क्लैट पेपर and उसके एक हफ्ते बाद ALET था. तो उसके बीच में 3-4 दिन तो बहुत ही परेशान रहना ये सभी गया था. बट फाइनली जब आई वॉज बैक इन माई सेंसेस कि चलो थोड़ा कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे को लगा मैं क्या करूँ. तो आई जस्ट डिड एलेट मेरे से 2 साल पहले वाला पेपर एंड आई डिड नॉट गेट अ वेरी गुड स्कोर. आई वॉज लाइक बॉर्डर लाइन मेकिंग इट टू द जनरल कट ऑफ. तो देन आई मतलब बट इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड ऐसा कुछ ये सोचना कि शिट अब 2 दिन में तो पेपर है, 2 साल पुराने वाला पेपर तो हो नहीं रहा मेरे से, ऐसी कैसी सिलेक्शन होगा, कैसे क्लियर होगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैंने ये देखा कि इस पेपर को मैं और अच्छी तरह से कैसे कर सकता था. सो आई एनालाइज द पेपर एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं चेंज कर सकता था. जैसे
उस पेपर में मैंने डिसाइड किया कि लॉजिकल पहले करूँगा, इंग्लिश नहीं करूँगा, जी के बीच में करूँगा। लॉजिकल में भी कभी कभी बहुत लेंदी पैसेज है, उनको छोड़ना इज़ अ स्मार्टर थिंग। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने उस एक एक पेपर को देख के उसको एनालाइज करके सीखा, एंड that is exactly what helped me in my real paper, क्योंकि that is the precise strategy which I used in my real ALET paper and I was able to do that much better. तो इसलिए एक PYP करने से मेरी genuinely रैंक और जो मेरी परफॉर्मेंस थी एलिट में स्काई रॉकेटेड, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अब सारे प्रीवियस पेपर्स अच्छे से करके जाओ। एक महीना शुड ओनली रिजर्व फॉर प्रीवियस पेपर्स, आई से। Then, now moving on to the third and the final tip, that is basically ki now is the time that you start focusing on something that you've been missing since throughout your preparation. You have been running through it. That is analytical. I know ki you have not done analytical. A majority of you would have not have even touched analytical. But I'll suggest कि analytical की मुश्किल से 10 टॉपिक हैं। रोज भी अगर 2 करने लगोगे 5 दिन में हो जाएंगे। अभी उसको अच्छे से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो कि एनालिटिकल के आई रिमेंबर एलिट मेरे पेपर में 3 क्वेश्चन थे एनालॉजी के, कोडिंग डिकोडिंग के, सॉरी, विच वर द मेक एंड ब्रेक, कि जिनके वो 3 सही हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी मेजर रीजन व्हाई दे हैव कम टू दिस कॉलेज। तो वो 3 क्वेश्चन वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश लॉजिकल बहुत लोग कर लेते हैं पर एनालिटिकल बहुत लोग छोड़ते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर रैंकर्स एंड द पीपल हु क्लियर एलिट टेक एन एडवांटेज। वो लोग वो करके जाते हैं। तो इसलिए डू एनालिटिकल बहुत अच्छे से। अब चाहे पूरे साल नहीं करा, अब इज द चांस टू डू दैट। But yes, with this we come to an end of this video. Thank you and all the best for your preparation.